हेलो बच्चों। बच्चों आज हम 9th क्लास का मोशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। समझते हैं क्या है वेलोसिटी। इससे पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेलोसिटी. We can relate velocity with displacement as well as speed. So we can say what is velocity? Displacement per unit time. This is called velocity. कि बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। एक बात और, we all know that displacement and distance may be same when the body travel in a straight line. When the body travel in a straight line, it means when the body ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो वी कैन डिफाइन वेलोसिटी इन अनदर वे, दैट इज फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, or we can say distance per unit time in a given direction. What is that? Distance per unit time in a given direction is also known as velocity. Clear? Now velocity is vector quantity. बच्चों क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? कल ही हमने बात करी है. वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है. दिस इज नॉन एज vector quantity. So we can say velocity is kind of vector quantity. Okay, then how can we denote it? It is denoted by letter v and ऊपर किसका साइन बना दिया हमने, एरो साइन, that means vector sign. So we can say it is denoted by v vector. What is its SI unit? Its SI unit is meter per second, similar to the speed. Okay, denoted by meter per second और meter per second ऐसा भी लिख सकते हैं और meter second inverse भी लिख सकते हैं. What will be the formula of velocity? Formula of velocity is displacement upon time. Okay, displacement is denoted by v vector is equals to s vector. So velocity v vector is equals to s vector upon t. Clear? We can also write here distance in a given direction. Distance in a given direction upon time taken. Okay, so both are similar. दोनों ही क्या चीज हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. व्हाट इज रिटन हियर? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, ये ध्यान रखेंगे. ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ किसका, वेलोसिटी का, जो जनरली हम डिस्टेंस के टर्म के लिए यूज में, आई मीन डिस्प्लेसमेंट टर्म्स से रिलेट करते हैं. और जनरली एक बात ध्यान रखनी है कि अगर बॉडी की डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो जो डिस्टेंस है वही बॉडी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है. ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन. ठीक है बच्चों, इतना एक बार लिखो, फिर हम आगे स्पीड से रिलेट करते हैं वेलोसिटी को और एक दो कॉन्सेप्ट और समझाते हैं वेलोसिटी के बारे में. राइट डाउन. बच्चों our next concept is uniform velocity. Uniform velocity is also known as constant velocity. What do you mean by a term constant? Constant, that means similar. So we can say a body has uniform velocity if it travel in a specific direction and covers equal distance in equal interval of time. क्या बता दिया कि बॉडी की यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, जब बॉडी जो है ट्रैवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बॉडी एक फिक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करे, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, दैट मीन बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे एंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time. Okay, and covers equal distance in equal time interval, then the velocity of body is said to be uniform or constant. ठीक है बच्चों. Okay, that means there is no change in velocity. अब एक बात आपको समझनी है कि how can we change the velocity? Velocity में changes कैसे होते हैं? Okay, so we can change velocity by two method. First, by changing the speed. That means if the body is traveling with a speed of 30 km per hour, okay, and if you will increase the speed by 50 km per hour or 60 km per hour, okay, so you have changed the speed, automatically the velocity of the body will be changed. Or we can change the velocity by changing its direction, because velocity has two components. What is that? Speed as well as direction. Velocity में दो चीजें हैं बेटा, speed भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है. So बॉडी की वेलोसिटी में कैसे चेंज किया जा सकता है, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड, दैट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड.
एंड द सेकंड वन बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। क्लियर? दोनों तरीके से बॉडी की वेलोसिटी में चेंज किया जा सकता है। नाउ हियर कॉन्सेप्ट इज दैट व्हेन द स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर इक्वल, पहले तो हमको ये समझना है क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं, है ना, और होंगे तो कब होंगे। वी कैन से, देखिए स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम अगर दोनों का कॉमन हो जाए और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाए तो जो बॉडी की स्पीड है वही बॉडी की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। सो वी कैन से, अच्छा ध्यान रखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगे, व्हेन द बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर बॉडी के डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं सो क्या हो जाएगा, जो स्पीड आएगी वही क्या आ जाएगी, आई मीन जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है, तो जो स्पीड है वही वेलोसिटी हो जाएगी। सो वी कैन से व्हेन द बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम। ठीक है, बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो जो बॉडी की स्पीड है वही बॉडी की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम, तो आंसर क्या बनेगा, व्हेन द बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, है ना, बॉडी की डायरेक्शन में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो, और स्पीड और तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो इतना एक बार लिखेंगे। अच्छा, जब मैं कहता हूं कि बोर्ड पे जो लिखा है वो लिखो, देन यू हैव टू राइट। और मैं जब इमीडिएटली आप देखते हैं कि दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है तो आप क्या करें कि जैसे ही मैं लिखने को बोल रहा हूं आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉज कर दें, बोर्ड आपको क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, और वहां आपको लिख लेना है अच्छे से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि राइट डाउन दिस, लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करेंगे और लिखते जाएंगे। Students, in this segment we are comparing between speed and velocity. Okay, so what is speed here? Distance per unit time. You all know that speed is distance per unit time and velocity is displacement per unit time. Okay, speed is scalar quantity. That means speed में खाली क्या है, speed has only magnitude without direction. Speed में only magnitude है, direction नहीं है. But velocity is vector quantity because it has magnitude as well as direction. स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड अगर बॉडी कोई मूव कर रही है तो कभी भी उसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो व्हेन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी जीरो व्हेन दी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जब बॉडी अपने ओरिजिनल पाथवे पे वापस आ जाए, व्हेन द बॉडी कम्स टू इट्स ओरिजिनल पाथ then its velocity will be zero. स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो बॉडी की वेलोसिटी आई मीन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा एज वेल एज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वी कैन से इट कैन बी जीरो। व्हाट इज दैट? वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। देन इसको कैसे डिनोट करें? सो स्पीड इज डिनोटेड बाय v, however velocity is denoted by v vector. ओके, तो ये तो कुछ कंपैरिजन हुआ, हालांकि कुछ कॉमन चीजें हैं, दोनों की एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, एंड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम व्हेन द बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, बॉडी की डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो जो बॉडी की स्पीड है वही बॉडी की क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, देन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, कि बॉडी किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट हुई या मूव कर रही है और फिर उसमें चेंजेस आया, तो द स्टार्टिंग वेलोसिटी, जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है या बॉडी स्टार्ट हो रही है, ओके, दिस इज नॉन एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी। और चेंजेस होने के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी आई, दिस इज कॉल्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दैट? इनिशियल वेलोसिटी द स्टार्टिंग, या फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है तब उसको हम क्या नाम देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, और दूसरे क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। चेंज होने के बाद या तो आपने स्पीड को बढ़ा दिया या वेलोसिटी को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तब जो आया दिस इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। अब टर्म वाइज समझ लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u, लेटर कौन सा है, u और स्मॉल u है,
एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। ओके बच्चों, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और एक बात यहां पर एक नई चीज निकल के आई कि वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑल्सो व्हेन द initial and final position both are same, or we can say when the displacement is zero, then the velocity of the body can also be zero when the body returns to its original path। ठीक है, ये करिए। अब इस पे बेस फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़, अच्छा 2 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, राइट डाउन दिस। बच्चों 2 पॉइंट को और समझ लेंगे, है ना, कि पहला पॉइंट ये कहलाता है व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर बॉडी जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इनिशियली वो रेस्ट पे थी, फिर आपने उसको स्टार्ट किया। सो इनिशियली अगर वो रेस्ट पे थी बॉडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स विल बी जीरो। ओके, सो व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू जीरो। भाई इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं, u से डिनोट कर रहे हैं। ओके, then what about second one, when the body comes to rest। एक बॉडी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। आपने उस पर क्या अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया। ब्रेक अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, फुल्ली बॉडी स्टॉप हो जाएगी। सो व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको आप v एवरेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज दैट, इनिशियल वेलोसिटी प्लस final velocity upon 2। So we can say v average is equals to u plus v upon 2। ठीक है, this is the formula for average velocity, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन फॉर्मूला है, बट इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान रखेंगे। दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है। ओके, बट ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, फ्यूचर आगे के क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला रोल प्ले करेगा। ओके बच्चों, अब इस पर बेस्ड हम एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं वेलोसिटी पर बेस्ड। ओके, एक बार इसको लिख लेंगे। बच्चों एक न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन है अ बस ट्रैवल 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर इन 5 आवर्स and again returns to Delhi in the same time, that means 5 hours। Calculate average speed and velocity of the bus। Okay, तो स्पीड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो पहले तो आप क्या कैलकुलेट करें, टोटल डिस्टेंस 250 जाने का एंड 250 आने का। लेट्स सी, टोटल डिस्टेंस सॉल्यूशन कर देते हैं। व्हाट इज दैट, 250 प्लस 250, हाउ मच इज दिस, 500 kilometer। and what is total time here, इसको S से लिखा है, इसको T से। 5 hours plus 5 hour, what is that, 10 hour। okay, you are asked average speed, what will the formula, total distance traveled upon total time taken। okay, what is total distance here, 500 and what is total time 10। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ओके, तो बच्चों एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। राइट, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बॉडी कहां से कहां जा रही है, दिल्ली से जयपुर जा रही है और वापस जो है जयपुर से दिल्ली आ रही है। तो इनिशियल एंड फाइनल बोथ पोजीशन आर सेम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, और टाइम कितना गिवन है, 10 आवर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
दैट मीन 0/10, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक है, जो भी डायरेक्शन आपको इंडिकेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुआ? बिकॉज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड आर सेम, बोथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक है ना। तो बॉडी की जो है वेलोसिटी कितनी हो जाती है यहाँ पे 0। ये कंडीशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखी है कि बॉडी की वेलोसिटी कब 0 होगी, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है बच्चों। तो ये एक न्यूमेरिकल लिखेंगे। अगला एक और न्यूमेरिकल हम ये देखेंगे कि जब स्पीड और वेलोसिटी कैसे सेम हो जाती है, उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस। बच्चों अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ इन 8 आवर, कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो स्पीड के लिए हम देखते हैं क्या गिवन है, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस हियर? Is it okay 40 kilometer, and what is time taken? Time is 8 hour। हम ये मान के चलते हैं कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कोई जुलूस वगैरह निकल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम ले रही है कार, है ना, या कार का मॉडल पुराना है। ओके, सो स्पीड इज इक्वल्स टू, तो स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 40/8, आंसर कितना आ जाएगा 5/8 की टेबल में आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई, ठीक है बच्चों। ओके, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, व्हेन द बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट, भाई एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, टुवर्ड्स नॉर्थ बोल दिया, यानी कि उसके डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, तो जो स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, आई मीन जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 40 किलोमीटर। टाइम गिवन है 8 आवर, ठीक है। वेलोसिटी ये आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट है हमारा 40/8, कितना आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कार लिख दिया है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको चेंज कर देते हैं, पर्सन लिख देते हैं, क्योंकि कार की स्पीड बहुत कम आ रही है। पर्सन हम मान लेते हैं क्योंकि अभी आपको पता है लॉकडाउन का टाइम था, कितने हमारे लेबर वैसे ही पैदल ट्रैवल करने लग गए, ठीक है। तो उनके ट्रिब्यूट के लिए क्वेश्चन दे दिया हमने, ठीक है, अ पर्सन ट्रैवल्स स्पीड। ओके, अब यहाँ पे तो वेलोसिटी ध्यान रखें कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको साथ में क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज दैट, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये हमने कर लिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा यूनिट में कैलकुलेशन की गई है, देन आप उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में कन्वर्ट करें, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करें। अदरवाइज अलग से कोई ऐसा यूनिट नहीं पूछी है तो आप यही कर देंगे। या फिर अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम सेकंड में है तो भी आप डिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हमेशा कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में ही करेंगे, ठीक है। तो बेटा आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो को 2 या 3 बार रिवाइज करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब जब नोटिफिकेशन आते जाएंगे आपको जो है जब जब नए वीडियो आते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ये जो न्यूमेरिकल है एक बार आप कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।